Yes, Assalamu alaikum. I'm Irfan Elahi, and today we are going to solve some example of this chapter number 3. As we have already completed the chapter, so now we are moving towards the examples, then numericals and short questions. So first example is example 3.2. The statement is a 15 kilogram car has its velocity reduced from 20 meter per second to 15 meter per second in 3 seconds. How large was the average retarding force? हमारे पास एक कार है जिसकी मैस 1500 किलोग्राम है और जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड में चेंज हो रही है और इसके लिए जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो 3 सेकंड्स। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो रिटार्डिंग फोर्स बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन द वेलोसिटी कम हो रही है, इट मीन्स फोर्स शुड बी रिटार्डिंग in the opposite direction of the force motion. So as we know that impulse, the change in momentum is equal to F cross T is equal to impulse F cross T is equal to change in momentum, that is mvf minus mvi. So all the things we know except the force, time 3 seconds, mass is 1500 kilogram, final velocity is 15 meter per second because velocity is changing from 20 to 15, so final is 15 and the initial velocity is 20. So putting all these values and solving the equation, we have the force that is minus 2500 newtons kilogram meter per second square. It means the force is minus 2500 newton and this is equal to minus 2.5 kilonewton, k newton or the kilo, because kilo is 10 raised to power 3, so it is minus 2.5 kilonewton, and the negative sign indicates that the force is retarding 1. Retarding means the force is being applied in the opposite direction to the motion. So this was example 3.2. Now is example 3.3. The statement of the example 3.3 is the two spherical balls of 2 kg and 3 kg masses are moving towards each other with velocities of 6 meter per second and 4 meter per second respectively. What must be the velocity of smaller ball after collision if the velocity of the bigger ball is 3 meters per second? एक्चुअली इसमें हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक बॉल की मैस जो है वो 2 किलोग्राम है जो कि स्मॉलर बॉल है हमारे पास, जबकि दूसरी बॉल की मैस हमारे पास है 3 किलोग्राम। जो 2 किलोग्राम वाला मैस है वो 6 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो 3 kg वाला बॉल है दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर लाइक इन द कोलिजन, बोथ बॉडीज आर moving towards each other. Now the question is what must be the velocity? Smaller जो बॉल है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर कोलिजन अगर बड़ी बॉल की जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड हो आफ्टर कोलिजन. So the solution is as both the balls are moving towards another, so their velocities are opposite of sign. Means अगर एक बॉडी जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन से अगर पॉजिटिव है तो दूसरा बॉडी अगर जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है ये ऑपोजिट है टू द अदर बॉडी. सो लेट अस सपोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ 2 किलोग्राम बॉल इज पॉजिटिव. जो स्मॉलर बॉल है जिस बॉल की मैस 2 किलोग्राम है आपसे कहते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, जबकि जो बड़ी बॉल है उसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है. सो वी नो दैट द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन क्या होता है, that is m1 v1. Say m1 is the velocity mass of m1, v1 is the velocity of this mass, m2 is the mass of other body, v2 is the velocity of the other body. So putting these values 2 into 6, because हमने अभी कहा है कि जो स्मॉलर बैस है उसकी वेलोसिटी को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव.
तो उसकी वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव लिया, जबकि जो दूसरा बॉडी उसकी वेलोसिटी को हमने क्या लिया, नेगेटिव। सो टोटल जो हमारे पास मोमेंटम होगा आफ्टर द कोलिजन दैट इज़ 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड माइनस 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड दैट इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन सम जो टोटल मोमेंटम है वो 0 है। तो आफ्टर कोलिजन द मोमेंटम जो हमारे पास है वो क्या होगा, वो होगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटीज़ है वो चेंज हो जाती हैं आफ्टर द कोलिजन। तो अब इस वैल्यू में इसमें मतलब इस एक्सप्रेशन में अगर आप वैल्यूज पुट करें तो मैस m1 जो थी, जो स्मॉलर मैस है दैट इज़ 2 किलोग्राम, और उसकी वेलोसिटी को आपने फाइंड आउट करना था, दिस इज़ v1 डैश। जबकि दूसरी जो बड़ी बॉल है उसकी वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, -3 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन क्यों लिया हमने, क्योंकि हमने शुरू में कहा है कि वेलोसिटीज आर ऑपोजिट। सो आल्सो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम ये जानते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0 है हमारे पास, और आफ्टर कोलिजन अगर हम मोमेंटम में जो है मोमेंटम की वैल्यूज ऐड करें तो उसके बाद जो हमें v1 डैश की वैल्यू मिल रही है दैट इज़ 4.5 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमें मालूम करनी थी। सो इस तरह हमने जो स्मॉलर मैस है उसकी जो है वेलोसिटी हमने वो फाइंड आउट कर ली है जी। थैंक यू वेरी मच।